So till previous videos, we were completed our exercises. Now we are going to start the problem set of first chapter, and there are some multiple choice questions in which first question says that triangle ABC and triangle PQR in a one-to-one correspondence where AB upon QR is equals to BC upon PR is equals to CA upon PQ. Then then there are some conditions. Then there are some answers, and we have to choose one correct answer from them. So so answer number 1 says triangle PQR is similar to triangle ABC. So we have to see that whether it is similar or not. So here triangle PQR is similar to triangle ABC. This triangle start from vertex P and this triangle start from vertex A. The vertex should be common of both the triangles. If the vertex are not common, it means they are not similar. So so option number A will be incorrect. Here triangle PQR, if this triangle started from vertex P and it also started from vertex C. That is PQR is similar to CAB. So this answer will be right. And third one is what? CBA is similar to PQR, which is incorrect. And again BCA is similar to PQR. BCA is similar to PQR. Again it is incorrect. So option number 2 will be the correct answer of this question. Now let's move towards the question number 2, which says that if in triangle DEF and PQR, angle D is congruent to angle Q, it means this angle is congruent to this one, angle R is congruent to angle E, this one is congruent to this one, then which of the following statement is false? Okay, so if two angles are congruent to each other, it means from A test these triangles will be similar to each other. So we can take their corresponding side in a proportion, and this side will be equals to each other. So EF upon PR, EF is here and PR is here. So EF यहाँ है और PR यहाँ is okay, is equals to DF upon PQ. करेक्ट है ये. सेकेंड क्या बोलते हैं? DE ये वाली साइड है, इसके अपॉन में PQ, ये QR आनी चाहिए. ठीक है, DE जो साइड है इसके नीचे QR आनी चाहिए, बट यहाँ पे PQ है. सो दिस आंसर इज इनकरेक्ट. देन द ऑप्शन नंबर C सेज DE ये वाली साइड DE अपॉन क्या आनी चाहिए? QR. ओके करेक्ट है. DF अपॉन क्या आना चाहिए? QP, बट यहाँ पे DF अपॉन क्या आना चाहिए? PQ. ओके इट्स ऑल्सो करेक्ट, ये करेक्ट है, C ऑप्शन. एंड थर्ड क्या बोल रहा है? EF अपॉन RP, EF अपॉन RP करेक्ट इज इक्वल्स टू DE अपॉन QR. EF अपॉन, अच्छा बोला क्या है? कौन सी फॉल्स है? तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. सो EF अपॉन PR करेक्ट इक्वल्स टू DE अपॉन QR, ये भी करेक्ट है. सो सेकेंड स्टेटमेंट ऐसा है, सेकेंड ऑप्शन वो है जो कि इनकरेक्ट है. ओके समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सिमिलर दोनों भी ट्रायंगल, अगर सपोज अभी यहाँ पे साइड का प्रोपोर्शन दिया, इट मींस दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर. बट कौन सा ट्रायंगल है? हम लोग कैसे मतलब ट्रायंगल को स्टार्ट कैसे करेंगे, कौन से नेम से? तो सेकेंड आंसर जो है हमारा करेक्ट है, क्योंकि ट्रायंगल कॉमनली, सपोज वो कॉमनली मूव होना चाहिए. अभी देखो यहाँ पे PQR है, PQR ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाना चाहिए, CA. ओके सो सेकेंड आंसर करेक्ट है. और वहाँ पे इनकरेक्ट बोला है तो सेकेंड इज इनकरेक्ट, बाकी सब करेक्ट है. ओके so here the question number 3, which says in triangle ABC and triangle DEF angle B is equals to angle E and angle F is equals to angle C and AB is equals to 3DE. okay then which of the statement regarding the two triangles is true? दोनों ट्रायंगल है, हमको बोला है B एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C हमारा F के इक्वल है. तो कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों ट्रायंगल के रिगार्डिंग ट्रू होगा? अभी देखो दो ट्रायंगल, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल है, ठीक है, इट मीन्स
these two triangles are similar to each other from angle test. तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये बात तो पता है, बट इज द गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर? नो. Why? Because these triangles do not have a same size, they have a same shape. और ऐसे ट्रायंगल जिनके पास सेम शेप होता है, दे आर सिमिलर, बट अगर उनके पास सेम साइज भी है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. मैंने स्टार्टिंग में बताया था. सो यहाँ पे ऑप्शन ये बोल रहा है द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर. नो, इट्स इनकरेक्ट बिकॉज दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है द ट्रायंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. इट इज अ करेक्ट. ये ट्रायंगल सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं. थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर. इट्स इनकरेक्ट बिकॉज इट्स दिस ट्रायंगल आर सिमिलर but it's not congruent. And D says that none of the above, which is incorrect. So correct option is option number B, where the triangle are similar but not congruent. These two triangles are not congruent but they are similar because these both triangles have two angles which are equals to each other, and by a test these triangles are similar to each other. Congruent क्यों नहीं है? क्योंकि इनको सेम साइज नहीं है, सेम शेप है बट सेम साइज नहीं है. और हमने स्टार्टिंग जब 1.3 किया था तो हमने पढ़ा था कि सिमिलर ट्रायंगल हम उनको बोलते हैं जिसके पास सेम शेप होता है, और अगर सेम शेप के साथ साथ सेम साइज भी हो जाए तो वो दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. सपोज ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का साइज सेम होता है, शेप तो सेम है पर साइज अगर सेम होता है, यहाँ पे ये इतना बड़ा इसकी जैसे ही होता है, अगर ये लेंदी थोड़ा, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि यस. देन फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में हमारी वो नहीं, थर्ड वाली स्टेटमेंट करेक्ट होती है कि हाँ ट्रायंगल सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, बट नहीं है सेम साइज का, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. बाकी सारे के सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है. ओके. And now here we have a question number 4 which says ABC and DEF are equilateral triangle. We know what is equilateral triangle means. Equilateral triangles are triangle which have two equal sides. Okay, जिसके दो equal congruent side होती है उसको equilateral triangle बोलते हैं. Okay, so where area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equals to 1:2. area का ratio दिया है. बोला if AB equals to 4, it means this side is equals to 4. Then what is the length of DE? DE का length हमको पूछा. Okay, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इसके पहले हमने 1.4 स्टार्ट किया था जब, तो उसके पहले एक थ्योरम पढ़ी थी. वो थ्योरम हमको बोल रही थी कि when two triangles are similar then the ratio of their areas is equals to the ratio of their ratio of the square of their corresponding sides. है ना, हमने थ्योरम जो पढ़ी थी उसका स्टेटमेंट था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है? उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है. तो वो थ्योरम इधर अप्लाई होगा. तो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा था ना कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज दीज आर द इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर तो होगा ही बिकॉज टू साइड्स उसकी पहले से ही कॉन्ग्रुएंट होती है. तो यहाँ पे ये अपना सिमिलर ट्रायंगल है. तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली. अब यहाँ पे ऑप्शन दिए आपको डायरेक्टली एग्जाम में ऑप्शन करना है, बट मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे सॉल्व करना है, वो बताती हूँ. कैसे लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू क्या बोला है? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके, तो कैसे लिखूंगी? अभी यहाँ पे इसका साइड्स क्या क्या है? AB अपॉन, हम लिखते थे ना AB अपॉन DE, देन BC अपॉन EF, देन AC अपॉन DF. बट यहाँ पर हमको इतने सारे साइड्स लिखने की जरूरत नहीं है. हमको जो दिया है क्वेश्चन में कौन सी साइड दी है? AB और D, तो उतना ही लिखो. AB इज इक्वल्स AB अपॉन, यहाँ पे क्या दिया अपने को? D पूछा है, AB दिया है. AB एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DF इज इक्वल्स टू 1/2. 1/2 हो गया. और AB अच्छा इसका स्क्वायर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. हो गया. देन AB स्क्वायर, AB का वैल्यू इज 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर. तो ये 1/2, 4 का स्क्वायर इज व्हाट? 16. D स्क्वायर. सो वी वांट D नॉट D स्क्वायर. पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो ये क्या होगा? D स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो इट विल बी D स्क्वायर. और ये क्या हो गया? 16 × 2. अब D
चाहिए अपने को तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, इसके लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेंगे 16 इंटू 2 का, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो डी इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट इज 4 और रूट 2 का स्क्वायर रूट इज रूट 2। सो आंसर विल बी डी इक्वल्स टू 4 रूट 2। कहाँ है अपना आंसर, डी, ये वाला अपना करेक्ट आंसर है, डी 4 रूट 2। ओके, समझा कैसे किया हम लोग ने। एंड लास्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअली एमसीक्यूज के सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन डू बाय योरसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या कहते हैं कि इन ट्रायंगल ABC BDC is collinear, BDC is collinear where BD equals to 7, BC equals to 20। ये 7 है और BD जो है वो हमारा 7 है और BC कितना है 20। ये 7 है और ये पूरा जो है वो कितना है 20। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। फर्स्ट ये पूरे रेशियोज हमको फाइंड करना है। अगर देखा जाए तो दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर है 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के, एकदम वैसा है ये सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, अभी पहले तो अभी जब इसका यूज होगा देन BD चाहिए अपने को, DC चाहिए और BC चाहिए। तो वी डोंट हैव DC हमारे पास नहीं है, तो हम DC फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं सोल्यूशन से स्टार्ट कर दूँ, पहले DC फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का कोई स्टेप करेंगे। सो BC इज इक्वल्स टू BD, BC बना कैसे, BD प्लस DC से, वाई बिकॉज BDC इज कोलिनियर, यहाँ पे लिखा है, इनको गिवन में दिया है। सो BC इज 20, BD इज 7 एंड DC इज नथिंग, वी हैव टू फाइंड। सो कितना हो गया ये, BC इक्वल्स टू 20 माइनस 7, सो DC इक्वल्स टू 13। ओके, सो DC का वैल्यू कितना आ गया 13। अब BC का वैल्यू अपने को 13 मिल गया। अब हम लोग देखते हैं ABD ADC वगैरह सबका। यहाँ पे हम लोग देखो जब अपना प्रैक्टिस में सेट 1.1 स्टार्ट किया था, उसके स्टार्टिंग में केसेस पढ़े थे कि ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस, देन ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि वो ट्रायंगल जिनकी हाइट इक्वल होती है आर प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, और जिसकी हाइट इक्वल, बेस इक्वल होता है वो उसके हाइट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अभी अगर देखा जाए तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AD, 3 ट्रायंगल दिए ना यहाँ पे, कौन कौन से, एक तो ABD है, दूसरा ट्रायंगल इज ADC एंड द थर्ड वन इज ABC। और तीनों के ट्रायंगल का एक वर्टेक्स जो कॉमन है वो है A। ठीक है, वर्टेक्स A इज अ कॉमन, एंड जो मेरा बेस है दैट इज BD, DC एंड BC, ये भी तीनों के तीनों सेम ही लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब इसकी हाइट जो होगी वो इक्वल होगी। कैसे लिखेंगे, देखो मैं लिखूंगी ट्रायंगल ABC, ABD, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC have common vertex A and their bases, ABD का बेस क्या है, ABD का बेस इज BD, ADC का बेस इज DC एंड ABC का बेस इज BC, एंड BC lies on the same line, कौन सी सेम लाइन, दैट इज BC। इट मीन्स इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, इक्वल। सो देयरफॉर देयर हाइट विल बी इक्वल, उसकी हाइट इक्वल होगी। और अब आगे अब अगर हाइट इक्वल होगी तो हम लोगों ने जो कंडीशंस पढ़ी थी उसमें से एक ये था कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग, इफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्वेंट देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, है ना, ये पढ़ा था ना कि इफ। यहाँ पे तो फिर हम लोग को अपना स्टेटमेंट आपको लिखना है खुद से।
if the height of the triangle are equal then the area of triangle are proportional to their corresponding bases. इसका मतलब एक वन बाय वन हम सबके बेस लिखेंगे. अभी यहाँ पे फर्स्ट हमको क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. ABD का बेस क्या है, ABD का बेस इज BD and ADC का बेस इज 30, सॉरी DC. ओके, where BD का वैल्यू इज 7 एंड DC का वैल्यू इज 13. फर्स्ट वाला हो गया. सेकेंड क्या बोल रहे हैं अपने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ABD में बेस क्या है, ABD, अगेन बेस इज BD एंड ABC में बेस इज BC. सो वी हैव BD इज 7 एंड BC अपने पास कितना है, पूरा 20. ये भी हो गया. थर्ड क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ADC have base DC and ABC have base BC. DC is equals to 13 and BC is equals to 20. ओके, सो सॉल्व हो गया. ये तीन आंसर्स थे. समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने. सबसे पहले हमने DC निकाला क्योंकि यहाँ देखो हमको आगे DC का काम आने वाला था 13. उसके बाद ABD, ADC and ABC have common vertex that is A and their bases BD, DC and BC lies on the same line. So that is why their height will be equal. And we have read the statement in the first exercise which says that if the height of the triangle are equal then the area is proportional to their corresponding bases. So वो statement हमको यहाँ लिखना है. So according to this statement फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आंसर्स हम लोग ने इजीली फाइंड आउट कर लिया. ओके, अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3. So now here we have question number 3 which says that ratio of areas of two triangles with equal heights is 2:3. If base of the smaller triangle is 6 cm, then what is the corresponding base of the bigger triangle? Okay, ratio of area of two triangles. We have two triangles with equal heights and the ratio of their areas is 2:3. If the base of the smaller triangle is 6 cm, ठीक है, अगर हमारा स्मॉलर ट्रायंगल है उसका बेस 6 cm है, then what is the corresponding base of bigger triangle? दो ट्रायंगल है जिसकी हाइट इक्वल है, उसके एरिया का रेशियो इज 2:3. बिगेस्ट ट्रायंगल जो स्मॉलर ट्रायंगल जो है उसका बेस इज 6 cm. देन वी हैव टू फाइंड द बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल. ओके, सो लेट्स अज्यूम द एरिया एज A1 एंड A2. सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, let the area of the triangle is A1 and A2 and their bases are बेसिस क्या अज्यूम करेंगे, B1 एंड B2. या तो स्मॉलर वाला जो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि let the base of smaller triangle is B1 and the bigger triangle is B2. And the base of smaller triangle is B1 and base of bigger triangle B2 is B2. Okay, एरिया को अज्यूम किया इज A1 and A2 एंड बेस इज B1 and B2. अब एक हमको एक कंडीशन जो दी है वो ये कि बोथ ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स. अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है देन देयर proportion of their area will be equals to the proportion of their bases. चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1 के कंडीशन जो पढ़ी थी कि अगर कोई ट्रायंगल्स है विथ इक्वल हाइट देन द एरिया ऑफ देयर ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द करेस्पॉन्डिंग बेसिस, है ना. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल्स हैव
triangles have same या equal heights, triangles have equal heights. ओके, फिर आगे क्या लिखना पड़ेगा कि वो कंडीशन, अपना स्टेटमेंट इधर लिखो. क्या स्टेटमेंट लिखनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. यहाँ पे लिखने का. उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, A1/A2 और B1/B2 इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल. ओके, A1/A2 इज 2:3. B1/B2 में हमने एज्यूम किया है स्मॉलर वाले को B1 और बिगर वाले को B2. स्मॉलर वाले का अपने को मिला है, हमारे पास है, इट इज 6 सेंटीमीटर बेस, स्मॉलर वाले का बेस, और बिगर वाले का नहीं वाला. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, B2 6 × 3 डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड हुआ 3 आया इधर, और B 3 3 9 सेंटीमीटर. सो इट्स अ फाइनल आंसर. ओके, यहाँ पे फाइनल आंसर लिखती हूँ. यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर. ओके, ये फाइनल आंसर है. कैसे क्या हम लोगों ने हमको रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया था इक्वल हाइट के साथ. Okay, both triangle have equal heights. We have a base of smaller triangle and we have to find the base of the bigger triangle. Then let the area of triangle assume किया कि फर्स्ट वाला जो एरिया है, फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया A1 है और सेकंड वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया A2 है. Then B1 is the base of a smaller triangle and B2 is the base of the bigger triangle. Then triangle have equal heights. It means statement इधर आएगा कि the triangle with equal heights, the area of triangle with equal heights is proportional to their corresponding bases. Is proportional to the ratio of their corresponding bases. तो A1/A2 equals to B1/B2. Value substitute की, cross multiplication किया, and then answer मिल गया. Okay, so base, that is area, base of the bigger triangle is 9 centimeter. B2 equals to 9 centimeter. Okay. So let's move towards the question number 4, which says angle ABC is equals to angle DCB is equals to 90, where AB is equals to 6, DC equals to 8. Then we have to find the area of triangle ABC upon area of triangle DCB. Okay, ABC is 90, DCB is also 90, right angle triangle है दोनों. हाँ, उसके बाद बोला गया है कि AB is equals to 6, DC equals to 8. हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो हमको दिख रहा है कि अगर देखो सोल्यूशन में अगर हम ट्रायंगल ABC में जाते हैं, ट्रायंगल ABC में बेस क्या है BC, हाइट क्या है AB. वैसे ट्रायंगल DCB में बेस क्या है BC एंड हाइट क्या है DC. इट मींस बोथ ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेस, है ना. बोथ ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेस एंड इफ द ट्रायंगल विथ हैव इक्वल बेस then the area of then the ratio of their area is proportional to the corresponding heights. Okay, so लिखते हैं कि triangle ABC and triangle DCB have equal base, common base और equal base. फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे अपना स्टेटमेंट कि triangle नहीं we'll write area of triangle with equal base is proportional to their corresponding height. Okay, ये स्टेटमेंट है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल्स टू ABC में हाइट क्या है, ABC में हाइट है हमारी AB, वैसे ही DCB में हाइट क्या है, DCB में हाइट इज DC. उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB is equals to AB is equals to 6 and DC equals to 8, which is given in the question.
AB is 6 and DC is 8. 2 से डिवाइड किया, 3 is 4. So area of triangle ABC upon area of triangle DCB is equals to 3 upon. This is the final answer which we got. Okay, बहुत easy question था, समझा? So in the question number 5 we have to give in that PM equals to 10 centimeter and PM is equals to 10 centimeter. Area of triangle PQS equals to 100 square centimeter. PQS is equals to 100 square centimeter. Area of triangle QRS is equals to 110 square centimeter. ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया 110 स्क्वायर सेंटीमीटर 110 और ऊपर वाले का 100. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ NR. NR is the height of QRS and PM is the height of QPS. QH is a common base of both the triangles. So how will we solve? Solution I will write कि triangle PQS and triangle QRS have equal base. Okay, both have equal base, that is QS. तो ट्रायंगल हमारे पास क्या था कंडीशंस कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस आर proportional to their corresponding heights. So we'll write here area of triangles with equal base are proportional to their corresponding heights. Okay, so area of triangle PQS upon area of triangle QRS is equals to PQS में height क्या है? PQS में height is PM and in triangle QRS height is NR. Area of triangle PQS is 100. Area of triangle QRS is 110 is equals to PM is equals to what? PM is 10 and NR is as it is. Then next step is we have to cross multiply. So it will become NR equals to 110 into 10 upon 100. 0, 0, 0, 0 will be cancelled with each other. So NR equals to 11 means 11 will be the final answer. Okay, so the height of a triangle QRS, that is NR, is equals to 11 only. Okay, 11 centimeter. समझा कैसे किया हम लोगों ने? इट्स वेरी इजी. हमको ट्रायंगल दिया था, सारे के सारे जो अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चंस, ये सबका सब वो जो कंडीशंस हमने पढ़ा था उस पर ही डिपेंडेंट है. तो कैसे किया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS and area of triangle QRS have equal base and area of triangle with equal base are proportional to their corresponding heights. So area of triangle PQS upon QR is equals to PQS में height is PM and in QRS we have height as NR. Substitute the values and cross multiply करो and we get NR equals to 11 centimeter.